Hello student, welcome to Kalam Academy. Today we have to learn about the lines and angles lesson of 9th standard, and we have to start the introduction of lines and angle. Before starting the introduction, like and subscribe my channel, and see in your downside the red color of subscribe button. Please click on the subscribe button and we have to start the session. So first we have to start the introduction of a lines and angle. So line, first point we have to see the lines. What is meant by lines? We have to draw a one line, straight line, and it is both sides are arrow, are not dotted lines. So it is a infinite line. So we call it is use the symbol L. So denote the line, and point A and point B are not end point. It is a infinite points. Okay. So it means this B point is infinitely going on, and this A point also infinitely going on. So that's why we have to denote like that. Line A and B are infinite like that. We have to use this symbol, and this is a line, and we have to use the small letter L, M, N for denote the lines. Okay. Next, lines, and what is meant by line segment? Line segment, it is a denoted by two points, joined at 2 points, end points by line segment. So it is a line segment, two end points, point C and D, both are end points and joined by a straight line. So we call say that it is called as a line segment, and we can say that CD, and we have to draw a line symbol, okay, up to top of a CD. Okay, it is the symbol of a line segment, but we can't use this symbol in our lesson. So it is for only your information. So this is called as a line segment. It is a line, it is a line segment. It is a infinite, it is a finite. Okay. Next point, ray. What is mean by ray? Ray is a starting for an end point. This is the end point. O is a end point starting from O. Okay, end point to infinite point. Okay, so it is a O A. O A is a ray. Okay, it is a one end point and one infinite point. So we can't say that it is called as a ray, and we denote it's like that. It is a ray. Okay. So our next point, intersecting lines. Intersecting lines. What is mean by intersecting line? Two lines are intersect each other at point O. Okay, at point O. This line L and line M. Okay, both lines are intersecting each other at point O. So we call say that it is a intersecting lines. Next topic. Next is a parallel line. So what is mean by parallel lines? Two lines are, first is a L, second line is a N. We denote the lines, use the small letter L. So like that we have to use L line, M lines. Okay, both lines are parallel. Whenever two parallel lines are not intersect each other anywhere. Okay, clear? Two parallel lines are not intersecting each other anywhere. So between two parallel lines have a equal distance 1 meter. Again in this way 1 meter. Everywhere distance are same. Okay, so it is a parallel lines. So you understand about the parallel lines. Okay, after that we have to say again, one point is collinear point and non-collinear point. What is mean by collinear point? Some points are lies on a straight line. Suppose we have to take this straight line. This straight line, okay. And some points is lies on A, point B, C, D, 1, 2, 3, 4. 4 points are lies on the line, straight line. So it is called as a collinear point. But point E, point F, point G, okay, E, F, G, these points are not lies on a line, so it is called as a non-collinear points. Are you understand?
कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सो इसका सब में बेस्ट एग्जांपल क्या है, जो खो खो खेलने वाले जो प्लेयर्स होते हैं, तो वो स्ट्रेट लाइन पर जो बॉयज बैठे होते हैं प्लेयर्स, स्ट्रेट लाइन के ऊपर नीचे जो बैठे होते हैं वो क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। और जो वो लाइन के आजू बाजू जो दौड़ते वो एक दूसरे को कैच करने के लिए, तो जो दौड़ने वाले और कैच करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट। ओके, इट इज अ वेरी सिंपल टाइप्स ऑफ एंगल्स। सो फर्स्ट टाइप ऑफ एंगल इज ए 0 डिग्री एंगल। ओके, सो 0 डिग्री एंगल्स को क्या करेंगे, हम वन एंड पॉइंट लेंगे, पॉइंट ओ से लेकर स्ट्रेट लाइन ए के ऊपर ये जो फर्स्ट लाइन सेगमेंट है उसी के ऊपर हमारी दूसरी लाइन सेगमेंट बी उसी के ऊपर आएगी 0 to B। इट इज कॉल्ड एज ए 0 डिग्री एंगल। दोनों स्ट्रेट लाइन, दोनों टू आर्म्स आर लाइज ऑन ईच अदर। ओके, वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंस होगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 डिग्री एंगल। तो ये बनता है हमारा 0 डिग्री एंगल। नेक्स्ट एंगल इज ए acute angle. Acute angle is a starting from 0.0. It is a vertices. Okay, it is a vertices. Two rays starting from the same vertices and go to another way. Okay, so different way. It is called as a acute angle. Acute angle. This arm, this is the arm, this is the arm, and it is a one vertices. So vertices O and B. It is a one ray O and A, it is a second ray, and this is a angle. So this angle X, it is a less than 90 degree and greater than 0 degree. So it is called as a acute angle. Acute angle क्या होता है, जो 90 डिग्री से छोटा होता है और 0 डिग्री से बड़ा होता है। तो इसके बीच में कितने भी डिग्री के एंगल आप ले सकते हो, 49, 45, 30, 60 डिग्री, ये क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल। नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल राइट एंगल। राइट एंगल इट इज ए 90 डिग्री। जो राइट एंगल होता है वो हमारा क्या होता है, कंप्लीटली 90 डिग्री का होता है। तो ये स्ट्रेट परपेंडिकुलर होता है सेकेंड रेज पर, दोनों का वर्टाइसेस कॉमन है। ओके, तो वर्टाइसेस एंगल वाई, राइट एंगल एंड एंगल वाई इज इक्वल टू कंप्लीटली 90 डिग्री। ओके, ये लेस भी नहीं होगा 90 से और ग्रेटर भी नहीं होगा, कंप्लीटली 90 डिग्री का जो एंगल्स होता है वो हमारा 90 डिग्री एंगल्स होता है। सेम एज इट इज हमारा जो नेक्स्ट है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ये 90 डिग्री से ग्रेटर होता है, 90 डिग्री से ग्रेटर और 180 से लेस होता है। तो इससे हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। फर्स्ट आर्म, सेकेंड आर्म एंड वन वर्टाइसेस 0, इट इज ए पॉइंट। ओके, ये क्या है, ये पॉइंट से दो रेज, फर्स्ट रे एंड सेकेंड रे, एंड ये एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर एंड लेस देन 180 डिग्री, इट इज कॉल्ड एज ए ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट एंगल स्ट्रेट एंगल। वन स्ट्रेट लाइन होगी और ये क्या होगा हमारा, ये मिडल पॉइंट होगा, ओ पॉइंट। ओके, वर्टाइसेस एंड पॉइंट होगा यहां से, ये फर्स्ट सेगमेंट, सेकेंड सेगमेंट, फर्स्ट आर्म, सेकेंड आर्म, एंड टोटली कंप्लीटली 180 डिग्री एंगल, इट इज कॉल्ड एज ए स्ट्रेट एंगल। ओके, तो समझ में आया कितने टाइप्स हो गए, 5 टाइप्स हो गए यहाँ पर एंगल्स के। ओके, तो इसके बाद में और नेक्स्ट 2 टाइप से, एक रिफ्लेक्स एंगल है एंड कंप्लीट एंगल्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट इट इज ए रिफ्लेक्स एंगल, इट इज ए बी ओ। ओके, इट इज ए रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल इट इज ए, ये रिफ्लेक्स एंगल कितने का होगा, रिफ्लेक्स एंगल 180 से ग्रेटर होगा और 360 से लेस होगा। 180 से क्या होगा, ग्रेटर होगा और 360 से लेस होगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट एंगल कितना होगा आपका, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल ये हमारा हो गया बी, ओ टू बी। अगेन इसी के ऊपर हमारी नेक्स्ट आर्म आएगी कंप्लीट एंगल्स की, तो ये ए आ जाएगा। तो ये हमारा एंगल इस तरह से रोटेट होगा और ये बन जाएगा 360 डिग्री एंगल, और इट इज कॉल्ड एज ए कंप्लीट एंगल।
सो इतने टाइप्स है एंगल्स के, ये हो गए टाइप्स ऑफ एंगल. नेक्स्ट लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट. द नेक्स्ट टाइप ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल. टू एंगल इज देयर, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री. सो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. Okay. Point O, we have to draw here another A, B and C. Okay. Angle X, angle Y. Triangle is there. Okay. So angle X and Y, angle X plus Y is equal to 90 डिग्री. जिस दो एंगल की सम 90 डिग्री होती है वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. एंड टू एंगल सम इज 90 डिग्री, दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. इट इज क्लियर. अगर सपोज इस पे से आपको क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, सपोज अगर आपको एक ये दिया है 20 डिग्री एंगल दिया है एक्स, वाई को फाइंड करना है और बोला इसमें कि बोथ आर कॉम्प्लीमेंट एंगल्स. ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, फाइंड द सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. सो व्हाट वी हैव टू डू, तो उसको सेकंड एंगल को कैसे फाइंड आउट करेंगे, बस यही अप्लाई करेंगे हम. x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री टू एंगल सम इज 90 डिग्री. सो दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव टू, we have to given x is equal to 20 degree, so we have to put x is equal to how many, 20 degree plus y is equal to 90 degree angles. Okay, अब इसको क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे. y is equal to 90 minus 20, how many remain, y is equal to 70 degree. Okay, क्या हो गया हमारा सेकेंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना आ गया, y is equal to 70 डिग्री. और इन दोनों की टोटल सम करो, आपको दिखाई देगा कि दोनों की टोटल सम कितनी आ गई है, 90 डिग्री. 70 प्लस 20 हाउ मेनी, 90 डिग्री. सो इट इज कॉल्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल. सो सप्लीमेंट्री एंगल कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन पर फॉर्म होता है. हमने इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म किया, मिडल में ले लिया 0, वन एंगल इस तरह से फॉर्म किया, इसको ले लिया हमने 60 डिग्री. ये हो गया हमारा x. ओके, ये x हो गया और ये y हो गया. इट इज ए सेकेंड एंगल. सो बोथ एंगल टोटल सम इज हाउ मेनी, 180 डिग्री. दैट्स एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल. सो सपोज x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो इट इज कॉल्ड एज ए सप्लीमेंट्री एंगल. जिस दो एंगल्स की टोटल सम 180 होती है वो एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं. तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं यूनिवर्सली, अगर बोला है कि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है और आपको एंगल x इज इक्वल टू 60 डिग्री गिवन है, तो सेकेंड एंगल को फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये अप्लाई करेंगे हम. दोनों एंगल की सम कितनी होती है हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. x कितना दिया है, 60 डिग्री. तो 60 प्लस वाई इज इक्वल टू हाउ मेनी, 180 ले लो. 180 लेने के बाद में हम क्या करेंगे, y को कन्वर्ट करेंगे. y इज इक्वल टू 60 को ट्रांसफर करो उस साइड में, 180 माइनस 60. सो y इज इक्वल टू 120 is remain. So remaining angle is 120. 120 plus 60, how many? 180 degree. And both angles are supplementary angle and both are each supplementary each other. Like that, both angles are complementary. Complementary angle total sum is 90 degree and both are complementary angle of each others. Okay, तो इस तरह से supplementary angle और complementary angle है. So let's see next part. See the next type of angle. Adjacent angle and linear parallel of angle. Two types again we have to see. So first we have to see the adjacent angle. So adjacent angle क्या होता है, इसके कंसेप्ट फर्स्ट देखेंगे हम. We have to draw this angle A O B and one again like that. Straight angle. Okay, C. So it is a adjacent angle. So what is the criteria of adjacent angle? So what adjacent angle have a three criteria is there. Okay, so three criteria. What is the criteria? First criteria is a vertices will be common. One vertices will be common. So this angle X and angle Y, both angle have a common vertices. Okay, so it is a one vertex. Second thing, one arm is common in two angles. First angle
second angle. Both angles, one arm is common. Which angle? This arm is common in both angle. And another sides are on the another way. Okay, non-common sides are on other sides. Okay, तो ये अलग sides पर होनी चाहिए. तो जब क्या होते हैं वो क्राइटेरिया, ये 3 क्राइटेरिया जब कोई डायग्राम सेटिस्फाइड करती तो वो क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल होते हैं. तो एंगल x and y both are adjacent angles. So we have to say that, we have to write here angle COB, angle COB and angle AOB, AOB are adjacent angle, adjacent angle. ओके, तो x और y दोनों भी कैसे हो गए? एडजेसेंट एंगल हो गए. सो ये हो गया इसका क्राइटेरिया. सो लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम, नेक्स्ट डायग्राम ऑफ ए लीनियर पेयर ऑफ ए एंगल. सो लीनियर पेयर ऑफ ए एंगल्स का क्राइटेरिया क्या है? लीनियर पेयर्स एंगल एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती है, स्ट्रेट एंगल फॉर्म करती है और उसके ऊपर हम सेकेंड एंगल को ड्रॉ कर दे. तो लेट्स सी, it is a straight line. Okay, it is a straight line angle like that. It is a straight line angle like that. Angle point vertices O and we have to draw again any one angle like that. Okay, तो ये क्या हो जाएगा आपका? एंगल x ले लिया, एंगल y ले लिया, दोनों की टोटल सम कितनी होनी चाहिए? 180 डिग्री. x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री. लीनियर पेयर एंगल्स की संख्या होती है 180 डिग्री आनी चाहिए. तो यहाँ पर देखो लीनियर पेयर एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल बोथ आर टोटल सम इज सेम. ओके, सो हमेशा ध्यान में रखो जो लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑलवेज सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं. जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑलवेज सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं. बट जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो ऑलवेज लीनियर पेयर एंगल नहीं होते, क्योंकि सप्लीमेंट्री में क्या क्राइटेरिया है? कोई भी दो ट्रायंगल एंगल्स की टोटल सम कितनी आनी चाहिए? 180 आनी चाहिए. बट लीनियर पेयर में क्या है? स्ट्रेट लाइन फॉर्म होना चाहिए. तो स्ट्रेट लाइन जब फॉर्म होगी दो एंगल्स में तब जाकर वो क्या होगा? लीनियर पेयर एंगल्स होंगे. बट एवरी लीनियर पेयर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल, बट एवरी सप्लीमेंट्री एंगल आर नॉट लीनियर पेयर एंगल. इज दैट क्लियर? तो इस तरह से ये एडजेसेंट एंगल है, लीनियर पेयर एंगल है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक वर्टिकली अपोजिट एंगल. वी हैव टू टेक अगेन वन वर्टिकली अपोजिट एंगल. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में क्या होता है? जो एंगल्स होते हैं, अभी टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर लाइक दैट. ओके, इस तरह से टू लाइंस क्या होगी? इंटरसेक्ट करेगी इस तरह से. तो इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल ये हो गया. इसमें आप हम एंगल लेंगे 1, 2, 3 एंड 4 लाइक दैट. सो इसमें जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होगी वो क्या हो गए? इक्वल हो गए. एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 1 एंड एंगल 3 इक्वल, डायरेक्ट इक्वल का एंगल होता है. एंगल 3 आर इक्वल. मेजर सेम एज इट इज एंगल 4 एंड इज इक्वल टू एंगल 2. ओके, दोनों एंगल क्या हो गए? इक्वल मेजर करेंगे. कहां पर? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में. तो इस तरह से इसमें क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा. सपोज अगर एंगल 1 अगर आपका 30 डिग्री है, एंगल 1 आपका 30 डिग्री है, तो एंगल 3 भी कितना है आपका? 30 डिग्री आ जाएगा. ओके, एंगल 3 भी कितना आएगा आपका? 30 डिग्री आएगा. एंगल 50, ये अगर एंगल 4 अगर 50 डिग्री दिया है तो एंगल 2 भी आपका कितना आ जाएगा? 50 डिग्री आ जाएगा. इस तरह से क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल मेजर. ओके, और उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल्स होते हैं. तो ये हो गया हमारे 3 एंगल्स के टाइप्स. नेक्स्ट लेट्स सी द नेक्स्ट एंगल टाइप्स. टॉपिक two lines and transversal. It is the most important thing and we have to see exterior angle, interior angle, corresponding angle, alternate interior, exterior and interior angles of the same side of a transversal. It is the most important types of a angle. So first we have to see two lines, line L and M. Both are not parallel line. Okay,
both are not parallel lines and transversal are intersect both line at a 2 points. ओके, सो अब यहाँ पर क्या करना है हमको, ये दो लाइंस दिखाई दे रही सबको, लाइन यल और यम है, ये दोनों लाइंस को क्या कर रही है, ये जो ट्रांसवर्सल टी, इसको हमने टी से डिनोट किया ट्रांसवर्सल, ये क्या कर रही है, दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ए, पी और क्यू, सपोज पी और क्यू में इंटरसेक्ट कर रही, बट दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल नहीं है। बट अभी हमको क्या करना है, डायग्राम को केयरफुली ऑब्जर्व करो, दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग कर सकते हैं, जब ये दोनों आगे कंटिन्यूअसली होगी तो कोई पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल लाइंस कहीं पर भी इंटरसेक्टिंग नहीं करते। तो मैं आगे ये एक्सप्लेन करने के बाद में पैरेलल लाइंस के बारे में आपको बताऊंगा। तो ये है फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और वन ट्रांसवर्सल आर इंटरसेक्ट टू लाइंस इन पॉइंट पी एंड क्यू। ओके, सो सपोज, तो अब यहाँ पर हमारे क्या हो रहे हैं, अलग अलग टाइप्स के एंगल फॉर्म्स हो रहे हैं। तो ये इन एंगल्स में बच्चों का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो लिसन एंड वॉच केयरफुली, ओके, ईच एंड एवरी स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको एकदम सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इन एंगल्स के बारे में। तो हम फर्स्ट निकालेंगे एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मीन्स बाहर वाली साइड वाले एंगल। एक्सटीरियर मीन्स क्या, बाहर वाली साइड। तो बाहर वाली साइड क्या है, अभी ये एंगल्स है, इसका इंटीरियर पार्ट क्या है, इंटीरियर मीन्स अंदर वाला पार्ट्स, ओके, बीच में का मिडल के, ये जो टू लाइंस है, ये टू लाइंस के मिडल का जो साइड होता है अंदर वाला, उसको क्या कहते हैं, इंटीरियर। और हमें क्या निकलना है, एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मीन्स बाहर, इंटीरियर मीन्स अंदर वाला एंगल, ओके, अंदर वाली साइड। सो एक्सटीरियर एंगल्स, तो एक्सटीरियर एंगल्स कौन सा होगा आपका, 1, 2, 7 एंड 8, ये क्या हो गया आपके एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। तो वी हैव टू राइट हियर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। 4 एंगल्स आर एक्सटीरियर एंगल्स, ओके। ये क्या है, 1, 2, 3, 4, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। 4 एंगल्स क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। चारों एंगल्स क्या है, बाहर की साइड में, देखो उनकी जो डायरेक्शन है वो सारे क्या है, बाहर के, ये डायग्राम की बाहर वाली साइड में एंगल्स, इन्हें क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल हम निकालेंगे। इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, 4 इंटीरियर एंगल्स, 4 एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6। ये क्या हो गया, इंटीरियर एंगल बाहर हो गया, इंटीरियर एंगल होगा अंदर। तो इंटीरियर क्या हो गया, अंदर वाली साइड के एंगल्स हो गए। तो ये होगी बाहर वाली साइड, ये होगी अंदर वाली साइड, ओके। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमारे एक्सटीरियर और इंटीरियर का कंसेप्ट क्लियर हो गया। एक्सटीरियर बाहर, इंटीरियर अंदर वाली एंगल्स। अंदर मीन्स ये टू लाइंस के बिटवीन यल और यम, ये दोनों के अंदर जो एंगल्स होंगे वो इंटीरियर होंगे, और इसके जो बाहर होंगे वो क्या होंगे, एक्सटीरियर होंगे। चलो लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, अब करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, देखो जहां पर भी करस्पॉन्डिंग एंगल बनता है वहां पर क्या बना सकते हैं हम, एफ। देखो अब लेट्स सी, ये दोनों लाइंस है, ये दोनों लाइंस इस तरह से समझो, सपोज लाइन यल यम, ये यल है और यम है, ये जो ट्रांसवर्सल है इसको मैं इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूं, ओके। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपके करस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये करस्पॉन्डिंग एंगल ले लिया मैंने 3 और 7, ओके, 3 और 7 फर्स्ट पेयर, करस्पॉन्डिंग एंगल की फर्स्ट पेयर, एंगल 3 एंड 7, एंगल 3 एंड एंगल 7, ओके। सेकेंड, अब इसी एफ को हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, इनवर्स कर देगा। अभी इसको क्या करूंगा मैं, ट्रांसवर्सल को शिफ्ट कर दूंगा इस साइड में, ओके। अभी इस तरह से ये उल्टा एफ बन गया। अब ये उल्टा एफ का क्या हो गया, देखो ये वाले एंगल्स, ये वाले एंगल्स, यानी कि एंगल 4 एंड 8, ये सेकेंड पेयर बन गई। सेकेंड पेयर एंगल 4 एंड एंगल 8 एंड एंगल 8, ओके। ये क्या हो गया आपके करस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये हो गया 2 पेयर्स। अब थर्ड पेयर इसका क्या करेंगे हम, अब ये जो लाइन से इसको ऐसे ही रहने दो, ये 2 लाइंस, ये हमारी यल है और ये यम है, ये यल और यम, ओके। अब इसको हम ट्रांसवर्सल को इस तरह से ऊपर की साइड में कर देंगे, उसको आगे उल्टा कर देंगे। अब इसकी ये वाली साइड आ जाएगी, ओके। तो अब ये एंगल 5 और एंगल 1, एंगल
5 एंड एंगल 1। ओके, एकदम इजी। बाद में आगे इसको क्या करेंगे, इसकी साइड चेंज कर देंगे हम। इसकी साइड कैसी चेंज कर देंगे, ये वाली साइड ले लेंगे। अभी इस तरह से इसकी साइड ले लेंगे। अभी ये वाला आ जाएगी आपकी। ओके, अब ये हो गया आपका एंगल 2 एंड एंगल 6। ये आ गया आपका एंगल 2, यही पे लिख देता हूँ मैं, एंगल 2 एंड एंगल 6। ये आ गया आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स की 4 पेयर्स। ओके, तो हमें करस्पॉन्डिंग एंगल की कितनी पेयर बनेंगी, यहाँ पर 4 पेयर। मैं आगे एक बार रिपीट करता हूँ। करस्पॉन्डिंग एंगल, ये जो अंदर वाली साइड में होते हैं, सेम साइड में, देखो एंगल 4 एंड 8 फर्स्ट पेयर, 3 एंड 7 सेकेंड पेयर, 1 एंड 5 थर्ड पेयर, 2 एंड 6 फोर्थ पेयर। कहीं पर भी आपको करस्पॉन्डिंग एंगल फाइंड आउट करना हो तो आप सिर्फ एफ ड्रॉ करो और उसी एफ को क्या करो, फोर साइड से उसको रोटेट करो और करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स बनाओ इजीली। क्या करना है हमको, सिर्फ एफ बनाना। इस तरह से कोई भी एफ बनाओ। ओके, इस तरह से एफ बनाओ, आगे इस तरह से एफ बनाओ सेकेंड। इस तरह से पेयर बनेंगे आपकी, ये वाले एंगल्स, ये वाले एंगल्स, ये आगे इस तरह से ये पेयर्स, आगे इस तरह से ये वाले पेयर्स और ये वाले पेयर्स। इस तरह से आपको क्या करना है, एफ बनाने। एफ को रोटेट करो और आपको 4 पेयर मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मीन्स अंदर वाले, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनाओगे तो एक बात ध्यान में रखना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाओगे तो जेड बनाना। ओके, देखो मैं ड्रॉ करके बता दो आपको। ये हो गया जेड। ओके, जेड। इसका जो अंदर वाले एंगल से ये क्या हो जाएगी, इसकी पेयर बन जाएगी अंदर वाले। अब ये क्या हो गई आपकी लाइन, ये एल लाइन होगी और ये एम लाइन होगी और ये जो है ये ट्रांसवर्सल होगा आपका, यानी कि एंगल 4 एंड 6। ये क्या होगी, अल्टरनेट एंगल की फर्स्ट पेयर, एंगल 4 एंड एंगल 6। ये होगी आपकी फर्स्ट पेयर कॉमन। सेकेंड, अब दूसरी पेयर निकालने के लिए क्या करो, इसको अल्टर करो, इसी तरह से रखो। अब इसको इस तरह से अल्टर करो। ओके, इसी तरह से अल्टर करोगे तो ये इंटीरियर एंगल बनेंगे, यानी कि एंगल 3 एंड 5। ये आ गया आपका 4, ये आ गया 6, ये हो गया 3 एंड 5, एंगल 3 और 5। इस तरह से आपकी सेकेंड पेयर बन गया एंगल 3 एंड एंगल 5। ओके, इस तरह से क्या हो गया, आपके 2 पेयर्स बन गई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। क्या होगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की पेयर्स बन गई। अब इसके बाद में अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मीन्स क्या, बाहर वाली साइड। अभी ये क्या करना है हमको, इसी तरह से जेड रहेगा बट इसका क्या होगी, बाहर वाली साइड के एंगल्स बनेंगे। तो बाहर वाली साइड के एंगल कैसे बनेंगे, देखो अब ये फर्स्ट पेयर, अगर ये 1 ले लिया तो इसका अपोजिट लेना है हमको, डायरेक्ट ये वाला एंगल 1 एंगल 7। फर्स्ट एंगल 1 एंड एंगल 7। ये क्या होगी, फर्स्ट पेयर होगी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की। हाँ, एक्सटीरियर और इंटीरियर इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेकेंड पेयर 2 एंड 8, एंगल 2 एंड एंगल 8। इंटीरियर एंगल्स ऑफ interior angle on the same side of the transversal. Interior angle on the same side of a transversal. इंटीरियर एंगल यानी कि 2 लाइंस के अंदर वाले एंगल सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर। अब ये है हमारी ट्रांसवर्सल, इसकी सेम साइड, ये वाली सेम साइड, सेकेंड ये वाली सेम साइड। ओके, और ये दोनों लाइन के बीच में के एंगल्स, इंटीरियर एंगल सेम साइड बोला है। तो यहां पर कौन सा पेयर बनेगा, एंगल 4 एंड 5 फर्स्ट पेयर, एंगल 4 एंड एंगल 5 फर्स्ट पेयर। सेकेंड पेयर दिस साइड, सेम साइड। ओके, सेम साइड के दोनों एंगल्स लेने हैं और उधर की सेम साइड के दोनों एंगल लेने हैं, वो भी इंटीरियर एंगल सेम साइड। सेकेंड इज 3 एंड 6, सेकेंड पेयर इज एंड एंगल 3 एंड एंगल 6। ओके, एंगल 6। इस तरह से ये हमारे टोटल एंगल इस तरह से बनते हैं। ओके, तो ये हो गए हमारे एंगल्स। अगर आपको ये
समझ में आया होगा ये ट्रिक। ओके, तो इस तरह से अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, ओके, और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो, जो कि आपके ब्लू लिंक के नीचे आपको रेड कलर में बटन दिख रहा है, उसके ऊपर एक बार क्लिक करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, ताकि आपको इस तरह की न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखो इसमें इस तरह से ये हमने एंगल फाइंड आउट करे। अब इसमें और एक चीज है जिसमें इक्वल एंगल की पेयर बनती है, तो वो एंगल की पेयर्स कब बनती है? अब ये जो फिगर है, इस फिगर हमने ये जो लाइंस निकाली है यल और यम, ये दोनों पैरेलल लाइंस नहीं है। ओके, जब आप इस फिगर को अब मैं चेंज करूंगा, इसमें हम चेंज क्या करेंगे, सिर्फ ये दोनों लाइंस को क्या करेंगे, पैरेलल बनाएंगे। तो पैरेलल लाइन जब बनाएंगे तो इसमें क्या चेंजेस होंगे देखेंगे। ओके, सो पहले ये ऑब्जर्व करो कि ये जो एंगल्स हमने बनाए तब ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं थी, अब ये दोनों लाइंस को हम पैरेलल बनाएंगे। तो लाइन यम, दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम है, देखो, तो ये दोनों क्या होगी, पैरेलल लाइंस। अब ये दोनों पैरेलल, जब टू लाइंस पैरेलल होगी और उसको एक ट्रांसवर्सल अगर इंटरसेक्ट करेगा, ट्रांसवर्सल हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ये ट्रांसवर्सल। ओके, एंगल के नेमिंग भी हम सेम करेंगे, एंगल 1, 2, एंगल 3, एंगल 4, 5, 6, 7, 8। ओके, अब यहां पर देखो, इसमें आप देखो कैसे चेंजेस होंगे। अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होनी चाहिए आपको, जब गिवन होगा, गिवन एम लाइन यल पैरेलल टू लाइन यम, जब ये गिवन होगा, ओके, ये बात में ध्यान में रखो, लाइन यल पैरेलल टू यम, दोनों लाइन पैरेलल हो गए और जब एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगी तब क्या होगा, एंगल की नेमिंग सेम रखी, आपने सब सेम रखा। इसमें आप क्या क्राइटेरिया अप्लाई होगा, जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर्स होती है ना, तो करस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर कौन सी होती है, 3 और 7, एंगल 3 और 7, ये जो एंगल्स है ये एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल मेजरमेंट करते हैं। अगर ये एंगल 3 30 डिग्री का अगर होगा तो एंगल 7 भी कितने का होना चाहिए, 30 डिग्री का ही होना चाहिए। कब, जब ये दोनों लाइंस क्या होगी, पैरेलल्स होगी तब, और ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा तब। सपोज अगर मैंने ये एंगल ले लिया, करस्पॉन्डिंग एंगल 1 इज इक्वल टू एंड 5, ये दोनों का क्या होना चाहिए, अगर एंगल 1 इज इक्वल टू 40 डिग्री है तो इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल आएगा 5, ये भी कितना आएगा, 40 डिग्री आना चाहिए। दोनों की मेजरमेंट इक्वल आती है जब पैरेलल लाइंस कब दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगी तब। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की जो पेयर्स होती है वो क्या होती है, इक्वल मेजर होती है। ये क्या है, आपके टेक्स्ट बुक्स में एक्सियम्स दिए है, तो ये सारे एक्सियम्स में आपको यहीं पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ओके, आप प्रॉपर स्टेटमेंट को रीड करना टेक्स्ट बुक्स में से। तो ये क्या आपका, अगर टू लाइंस इक्वल होगी तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल मेजरमेंट, तो इसके क्या हो गए, एंगल इक्वल्स हो गए। कब, जब हम इसके दोनों लाइंस पैरेलल्स होगी। सपोज अभी ये एंगल 2 है और एंगल 6 है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल, इसको मैंने 60 डिग्री लिया तो ये भी क्या आना चाहिए, 60 डिग्री आना चाहिए। इस तरह से क्या हो गया, तुम लोगों के एंगल्स इक्वल्स हो गए। उसके बाद में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी क्या हो गया आपके इक्वल हो गए। कब, जब ये दो लाइंस क्या होगी, पैरेलल लाइंस होगी, तब ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये और ये, जो कि जेड बनाते हैं हम, ये जेड। अगर इस तरह से ये लाइंस और ये लाइंस पैरेलल होगी तो ये एंगल और ये एंगल 4 एंड एंगल 6 बोथ क्या करेंगे, इक्वल मेजर करेंगे। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना आएगा, 30 डिग्री मेजर करेगा। इस तरह से क्राइटेरिया क्या है, दोनों इक्वल होनी चाहिए, पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। तो अल्टरनेट एंगल भी क्या होगी, आपके इक्वल्स पेयर करेगी। जो पेयर्स होगी एंगल की, उनकी मेजरमेंट क्या होगी, इक्वल्स होगी। अगर ये 40 डिग्री एंगल, ये अगर आपका 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी आपका कितना आएगा, अल्टरनेट एंगल का दूसरा अपोजिट 60 डिग्री आएगा पेयर। ओके, दोनों की एंगल क्या करेंगे, इक्वल मेजर करेंगे, सेम एज इट इज। इस तरह से अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका, जो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए
ट्रांसवर्सल, ये जो है सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, यानी कि ये वाले एंगल्स, ये दोनों एंगल्स और ये दोनों एंगल्स। ओके, जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होगी तो ये दोनों एंगल की जो पेयर होती है ना, वो कितने डिग्री की बनती है? तब 180 डिग्री। ये कितने की बनती है? 180 डिग्री की। और 180 डिग्री मीन्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स की पेयर्स बनती है। ये भी आपका एक्सियम से आपके टेक्स्ट बुक्स में। तो जब ये दो लाइंस पैरेलल होगी और ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा तो सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल्स क्या बनाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाएंगे। ये हो गया आपके कितने एक्सियम्स हुए? 3 एक्सियम्स हुए। करस्पॉन्डिंग एंगल का एक एक्सियम, अल्टरनेट एंगल्स की सेकेंड एक्सियम, सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल एंगल का थर्ड एक्सियम्स। अब इसका इनवर्स करते हैं। एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर 2 लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है और उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल मेजर करेंगे तो वो दोनों लाइंस क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। ये क्या है? इसका इनवर्स है। ओके, ये सेकंड। अभी कितने नंबर का एक्सियम से? 4 नंबर का। ओके, उसके बाद अल्टरनेट एंगल। अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल मेजर कर रहे हैं तो जो ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल जिन दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है वो दोनों लाइंस क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। ये थ्योरम भी आपका, इसको भी हम नेक्स्ट सेशन में प्रूव करेंगे। ओके, तो ये हो गया 6 नंबर का एक्सियम्स। और ये इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। अगर ये दो एंगल्स की पेयर 180 डिग्री की अगर होगी, अगर ये एंगल्स 180 डिग्री की अगर होगी तो ये दोनों लाइंस क्या होगी? ऑटोमेटिक पैरेलल्स होगी। पैरेलल लाइंस होगी, एक दूसरे को पैरेलल लाइंस होगी अगर उनको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा होगा। तो ये हो गया उसका इनवर्स। ओके, तो इस तरह से इसी के ऊपर मैंने कितने एक्सियम्स बताए आपको? 6 एक्सियम एक्सप्लेन कर दी। यहाँ पर सारे डाउट आपके इसी में क्लियर है। फर्स्ट मैंने ये जो एंगल्स फाइंड आउट किए वो क्या किए? नॉन पैरेलल डायग्राम पे किए। और एक्सियम्स किस पर एक्सप्लेन किए? पैरेलल लाइंस ड्रॉ की और उनको ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट किया। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो।